Dear students, today we are going to study Social Science Civic, Class 7, Chapter 5, Women Change the World. In the last two videos, we discussed about the learning for change, breaking stereotypes, and women change the world. How does what work? Now we discuss in this chapter through this video. Let us read about the experience of Rajsundari Devi 1800 to 1890, who was born in West Bengal some 200 years ago. At the age of 60, she wrote her autobiography in Bangla. Her book, titled Amar Jeevan, is the first known autobiography written by an Indian woman. Rajsundari Devi was a housewife from a rich landlord family. At that time, it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring bad luck to her husband and become a widow. Despite this, she taught herself how to read and write in secret. Well, after her marriage, यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, राजसुंदरी देवी 1800 से 1819, जिनका जन्म बंगाल में लगभग 200 वर्ष पहले हुआ था। राजसुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी और इन्होंने अपनी अमर जीवन की एक ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा इन महिला के द्वारा लिखी गई। और उस समय लोगों का ऐसा विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। I would start working at dawn and I would still be at it until well beyond midnight. I had no rest in between. I was only 14 years old at that time. I came to nature a great longing in I would learn to read and I would read a religious manuscript. मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी, जैसा कि राजसुंदरी देवी ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें अपनी आत्मकथा में उन्होंने बताया। और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी
विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन की एक अभिलाषा पनपने लगी कि मैं पढ़ना सीखूं और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। I was unlucky. In those days, women were not educated. Later, I began to resent my own thought. What is wrong with me? Women do not read. How will I do it? Then I had a dream. I was reading the manuscript of Chaitanya Bhagavat, the life of a son. I heard later in the day, I sat cooking in the kitchen. I heard my husband say to me, eldest son, Vipin, I have left my Chaitanya Bhagavat here. When I asked for it, bring it in, he left the book there and went away. When the book had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully. It was a job, hiding it, for nobody must find it in my hand. My eldest son was practicing his alphabet at that time. I hid one of them as well. At times, I went over that trying to match letters from that page with the letters that I remembered. I also tried to match the words with those that I would hear in the course of my days. With tremendous care and effort, and over a long period of time, I learned how to read. मैंने उन दिनों जो स्त्री को पढ़ाना नहीं जाता था, तो बाद में मैंने स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने के लगी। और मुझे क्या हो गया कि स्त्री पढ़ नहीं सकती, स्त्री पढ़ती नहीं है, फिर भी मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया। मैं चैतन्य भागवत, जो एक संत के जीवन के बारे में थी, उसको पढ़ रही थी। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठती हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी। जब मैं इसे मांगूं, तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपचाप से उसमें से एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छिपा दिया। उसे छिपाने भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी मैंने एक छिपा लिया। जब मौका मिलता
तब जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिश से एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना सीख सकी। रुकैया शेखावत हुसैन एंड हर ड्रीम अबाउट लेडीलैंड। इस तरह से रुकैया शेखावत हुसैन और लेडीलैंड का अपना स्वप्न था एक, जहाँ पर के आफ्टर लर्निंग द अल्फाबेट राजसुंदरी देवी वाज एबल टू रीड द चैतन्य भागवत thou her own writing. She also gave the world an opportunity to read about women's life in those days. Rajsundari Devi wrote about her everyday life experiences in detail. There were days when she did not have a moment's rest, no time even to sit down and eat. राजसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। राजसुंदरी देवी ने अपने दैनिक जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था। इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा ही लें। इस तरह से रुकैया शेखावत हुसैन का उनका एक जो सपना था। रुकैया शेखावत हुसैन वाज बोर्न इनटू अ रिच फैमिली हु owned a lot of land. How she knew how to read and write Urdu. She was stopped from learning Bangla and English. In those days, English was seen as a language that would expose girls to new ideas, which people thought were not correct for them. Therefore, it was mostly boys who were taught English. Ruqayya learned to read and write Bangla and English with the support of her elder brother and an elder sister. She went on to become a writer. रुकैया शेखावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा हुई थी जिसके पास बहुत जमीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी। उन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते, इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बंगला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। आगे चलकर ये एक लेखिका बनी। She wrote a remarkable story
titled Sultan's Dream in 1905 to practice her English skill. When she was merely 25 years old, the story imagined a woman called Sultana who reaches a place called Ladyland. Ladyland is a place where women had the freedom to study, work, and create invention like controlling rain from the clouds and flying aircraft. In this Ladyland, the men had been sent into their aggressive guns and other weapons of war defended by the brain power of women. As Sultana travels in Ladyland with sister Shara, she awakes to realize that she was only dreaming. 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी तो अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का शप। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी जो लेडीलैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। लेडीलैंड ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। लेडीलैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना लेडीलैंड में अपनी बहन शाह के साथ यात्रा पर जाती है, तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह तो केवल स्वप्न देख रही थी। As you see, Ruqayya Sakhawat Hussain was dreaming of women flying planes and cars even before girls were being allowed to go to school. This was the way in which education and the learning had changed Ruqayya's own life. Ruqayya did not stop at getting education just for himself. Her education gave her the power not only to dream and write, but also to do more to help other girls go to school and to build their own dreams. In 1910, she started a school for girls in Kolkata, and to this day, the school is still functioning. तरह से जैसा कि हमने देखा कि रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी। इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वयं स्वप्न देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी, वरन उससे भी अधिक करने की शक्ति। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है। In the next video, we discuss about the schooling and the education today.